Hello guys, welcome to our YouTube channel General Knowledge Adda. This is Srishti. Do like and share the videos and subscribe to our channel. We are doing the series of class 10th CBSE Maths NCERT book, and we had done the earlier session for Unit 8 Introduction to Trigonometry. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है लास्ट सेशन तो प्लीज़ देखिए, आप लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट उसमें क्लियर हो जाएगा. And for today we will start exercise 8.1. So watch this video till end and it will surely clear all your doubts regarding exercise 8.1. So let's begin with exercise 8.1. Exercise 8.1. Question number 1. In triangle ABC, right angled at B, AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. We have to find sin A, cos A, sin C and cos C. We will revise once all the trigonometric ratios. First of all, sin theta is equal to perpendicular by hypotenuse, cos theta equal to base by hypotenuse. Next, tan theta equal to perpendicular by base. Sin का उल्टा, that's cosec theta is equal to hypotenuse by perpendicular. Sec theta, that is hypotenuse by base, and cot theta is base by perpendicular. So these are the 6 trigonometric ratios that you need to learn by heart, and using these trigonometric ratios we'll solve the questions. Let's start. In triangle ABC, so first we'll draw triangle ABC and right angled at B. First we'll draw the figure. Triangle ABC right angled at B. So we'll write like this, and we'll draw AB equal to 24 centimeter and BC equal to 7 centimeter. AB 24 centimeter and BC 7 centimeter. We have to find sin A and cos A. First question, we have to find sin A and cos A. First of all, we'll find AC. Length of AC निकालेंगे सबसे पहले. तो AC is the hypotenuse. So formula is hypotenuse square equal to perpendicular square plus base square. तो AC square equal to AB square plus BC square. So AC will be equal to root under AB square means 24 square. 24 square plus BC square means 7 square. So it will become 576 plus 49. It will become root under 625 and the answer will be 25 centimeter. So AC we got 25 सेंटीमीटर. AC का लेंथ 25 सेंटीमीटर आ गया. अब हम लोग को निकालना है सबसे पहले साइन ए. लास्ट सेशन में मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए जाके. जो एंगल निकालना है, जिस एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियोज़ निकालना है, उसके ऑपोजिट वाला साइड को हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं. तो ये हम लोग एंगल ए के बेसिस पे निकालना है, मतलब साइन ए कॉस ए निकालना है. तो ए के ऑपोजिट वाला मतलब बी सी विल बिकम द परपेंडिकुलर इन फर्स्ट पार्ट. सो फर्स्ट पार्ट में है सबसे पहले साइन ए निकालना है. सो द फॉर्मूला फॉर साइन ए इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, एंड इन दिस क्वेश्चन परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपोटेन्यूस इज ए सी. So we'll write BC by AC. So the answer will be BC is 7 centimeter and AC is 25 centimeter. So this is our answer. Now cos A. The formula for cos A is base by hypotenuse. In this question BC becomes a perpendicular. So AB जो 90 degrees attached है वो base बन जाएगा automatically. So base will be AB and hypotenuse will be AC. So AB by AC. AB by AC. So the length of AB is 24 centimeter and AC is 25. So this is our answer. So the second part of this question says we have to find sin C and cos C. अब C के रेस्पेक्ट में हम लोग को रेशियोज निकालना है. तो C के रेस्पेक्ट पे जब रेशियो निकालेंगे तो परपेंडिकुलर विल बिकम AB. C के ऑपोजिट वाला साइड विल बिकम परपेंडिकुलर. अब AB परपेंडिकुलर है और BC बेस है. तो विल टू फर्स्ट वी हैव टू फाइंड sin C. तो साइन सी विल बिकम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ए बी और हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होता है तो वो ए सी ही रहेगा. तो ए बी 24 बाई 25. नेक्स्ट कॉस सी बेस बाय हाइपोटेन्यूस. इस फिगर में हम लोग का बेस है बी सी और हाइपोटेन्यूस है ए सी. सो द आंसर विल बिकम 7 बाई 25. So this is our first part, first question answer.
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 2 ईजी है, यू ऑल कैन सॉल्व इट. कुछ क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. तो साइन ए इज इक्वल टू 3/4. हम लोग को कॉस ए और टैन ए का वैल्यू निकालना है. फर्स्ट देखते हैं कैसे निकलेगा. साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है 3/4. साइन ए इज 3/4. तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. तो साइन ए की जगह पे हम लोग परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिख लेंगे इज इक्वल टू 3/4. अब यहाँ पे देखिए तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम लोग 3 ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का वैल्यू 4 ले सकते हैं. अब हम लोग को कॉस और टैन निकालना है. कॉस का फॉर्मूला होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज और टैन का होता है परपेंडिकुलर बाय बेस. दोनों के केस में हम लोग को बेस इंपॉर्टेंट है, बेस चाहिए हम लोग को तभी आंसर आएगा. तो हम लोग यहाँ से बेस निकाल लेंगे सबसे पहले. तो बेस का फॉर्मूला होता है √(h² - p²). तो यहाँ पे h क्या है 4, तो 4² - 3². तो बेस विल बिकम 4² मीन्स 16 - 3² 9, दैट इज़ √7. ये बेस निकल गया. अब हम लोग निकालेंगे. अब हम लोग को परपेंडिकुलर पता है 3, हाइपोटेन्यूज पता है 4 और बेस भी पता है √7. हम लोग कॉसे निकाल लेते हैं. कॉसे क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे कोई फिगर नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे. इससे हम लोग को परपेंडिकुलर और बेस का टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है. हम लोग को पता है परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 4 है और बेस √7 है. कॉसे इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो बेस क्या है हम लोग का √7 और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे 4, देन √7/4. नेक्स्ट tan ए. tan ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस. सो परपेंडिकुलर कितना है हम लोग का 3, तो परपेंडिकुलर की जगह पे 3 लिखेंगे और बेस की जगह पे √7. दिस इज आवर आंसर, √7/4 and 3/√7. That is cos A and tan A. Now moving to the next question. Question number 5 and 6. We'll discuss both. Though question number 5 and 3 are similar, but then also we'll discuss both the questions. First of all, question number 5. Sec theta दिया हुआ है 13/12. We have to find all other trigonometric ratios, means sin, cos, tan, cosec and cot. ये पांचों हम लोग को निकालना है. सेक थीटा तो दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कैसे निकलेगा. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5. सेक थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 13/12. तो सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा. लास्ट सेशन में बताया गया है सेक का उल्टा होता है कॉस और कॉस का उल्टा होता है सेक. तो कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो सेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस. दैट विल बिकम 13/12. बेस इज 12. तो हम लोग क्या बचा हुआ है परपेंडिकुलर. तो पहले परपेंडिकुलर निकाल देंगे. परपेंडिकुलर फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे 13 है, तो 13 स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर. सो परपेंडिकुलर विल बिकम 13² 169, 12 का स्क्वायर 144, दैट इज √25. तो आंसर आ गया 5 परपेंडिकुलर. हम लोग को बाकी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालना था. तो सबसे पहले साइन थीटा निकाल लेंगे. यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ए भी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम लोग थीटा ही लेंगे. तो साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 5 है और हाइपोटेन्यूज 13 है. देन कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेन्यूज. बेस क्या है यहाँ पे, तो बेस दिया हुआ है 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज 13. उसके बाद tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर 5 एंड बेस 12. सेक थीटा दिया हुआ है, तो हम लोग उसके बाद कॉसेक थीटा निकालेंगे. हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज 13 है, परपेंडिकुलर 5 है. उसके बाद लास्ट बचा कॉट थीटा, दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर. तो ये हो जाएगा 12/5. दिस इज आवर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6. 5 हो गया, 6 विल डू. Angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B. We have to show that angle A is equal to angle B. We have to prove angle A is equal to angle B. और हम लोग को cos A is equal to cos B दिया हुआ है. तो सबसे पहले we'll draw the figure for this question. A, B, C. तो सबसे पहले ए को लेना है. दिस विल बिकम आवर परपेंडिकुलर. ऑपोजिट ए के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर बन जाएगा बी सी. तो सबसे पहले हम लोग कॉस ए निकालेंगे. कॉस ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो ये बेस हो जाएगा ए के लिए, ए सी बेस हो जाएगा. तो ए सी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए बी एंड कॉस बी. तो सबसे पहले हम लोग कॉस ए निकालेंगे. कॉस ए क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस बाय हाइपोटेन्यूज. तो ये बेस हो जाएगा ए के लिए, ए सी बेस हो जाएगा. तो ए सी बाय हाइपोटेन्यूज इज ए बी एंड कॉस बी.
अब बी लेंगे तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस, तो बेस विल बी बी सी एंड हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है। तो इस अगर देखिए कॉस ए और कॉस बी में, तो ए बी एंड ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग का बचा ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी आया। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब फिगर देखें फिर से, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और हम लोग का आया ए बी इज़ इक्वल टू बी सी। तो ए बी ये वाला और बी सी ये दोनों इक्वल आ गया हम लोग का। तो हम लोग को निकालना क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इट्स प्रूव्ड, और कुछ नहीं करना। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। वेट अ सेकेंड, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल बी कैसे हुआ, ए बी की जगह पे एंगल बी क्यों लिखे, क्योंकि ए बी इसके ऑपोजिट वाला है ना, सॉरी इट्स ए सी नॉट ए बी, इट्स ए सी हियर, ए बी इक्वल नहीं होगा, ए सी ये वाला और ये वाला इक्वल होगा ए सी। तो ए सी साइड के, ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल क्या है, एंगल बी, तो एंगल बी लिखे हैं। और बी सी के ऑपोजिट वाला क्या है, एंगल ए, तो एंगल ए। मीन्स इसमें एंगल बी इक्वल टू एंगल हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि रीज़न यू कैन राइट एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना। ए सी के ए बी के ए सी के ऑपोजिट वाला साइड एंगल मीन्स एंगल बी, और बी सी के ऑपोजिट वाला एंगल मीन्स एंगल ए, बोथ विल बी इक्वल, हेंस प्रूव्ड। देयरफॉर it is proved, it is easy. Now moving to the next question, question number 7 will do। cot थीटा 7/8 दिया हुआ है और हम लोग को ये दोनों का वैल्यू निकालना। सबसे पहले तो cot थीटा दिया हुआ है 7/8। cot थीटा क्या होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर इक्वल टू 7/8। बेस और परपेंडिकुलर पता है हम लोग को। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से बचा हुआ जो थर्ड पार्ट है, दैट इज़ हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज होता है रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर है 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दैट विल बिकम 64 प्लस 7 49, एंड दैट विल बी रूट अंडर 130। तो हाइपोटेन्यूज निकल गया, बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए कैसे निकलेगा। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस कॉस थीटा। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। आप लोगों ने देखा होगा, इसका आइडेंटिटी पता होगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप लोग सब ने पढ़ा होगा ये। तो इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस आइडेंटिटी का। तो हम लोग 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की जगह डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूज़ कर सकते हैं। एंड 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की जगह पे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर सकते हैं। देखते हैं, तो 1 बन जाएगा ये ऊपर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना होगा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब देख ले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है। परपेंडिकुलर का है 8 एंड हाइपोटेन्यूज का है रूट अंडर 130। तो इट विल बिकम 8 बाई रूट अंडर 130। तो ऐसे ही कॉस थीटा का होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हम लोग का 7, हाइपोटेन्यूज है रूट अंडर 130। अब बस वैल्यू पुट करना है। साइन स्क्वायर थीटा मतलब 8 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 7 बाई रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर। उसके बाद अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको 1 माइनस 8 बाई 113 का होल स्क्वायर मीन्स
8 का स्क्वायर 64/100 रूट अंडर 113 का स्क्वायर मीन्स 113। और इसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख देते हैं। इस साइड है 1 - 7 का स्क्वायर मीन्स 49 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर मीन्स 113। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 113 - 64/113 डिवाइडेड बाई 113 - 49/113। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। It will become 113 - 64, 49/113, and it will be divided by 113 and divided by 64/113. So इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो it will become 113/64. It will be cancel out, so our answer will become 49/64. This will be our answer. Now इसका सेकेंड पार्ट भी है। इसका सेकेंड पार्ट में हम लोग को निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? बेस बाय परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। अब आप लोग क्वेश्चन को देखिए तो कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 7/8, तो इसका ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/, ये हो जाएगा 7/8 का होल स्क्वायर मीन्स आंसर विल बिकम 49/64. This is our answer. Now moving to next question. Question number 8. 3 cot A is equal to 4 and we have to check whether itna is equal to cos square A minus sin square A or not. Means we have to prove 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A. सो फर्स्ट वेल एज़ यूजुअल इसको सॉल्व करेंगे। पहले 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है। सबसे पहले ये 3 को हम लोग दूसरे साइड भेजेंगे तो इट विल बिकम cot A इज़ इक्वल टू 4/3। अब देखिए सेम फॉर्म में आ गया है पिछले क्वेश्चन की तरह। cot A है बेस बाय परपेंडिकुलर, सो इट विल बिकम T/P इज़ इक्वल टू 4/3। अब हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे, रूट अंडर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो इट विल बिकम 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 दैट इज रूट 25। और आंसर विल बिकम 5। हाइपोटेन्यूस इज 5। अब हम लोग को क्या निकालना है? LHS और RHS करके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले tan A और tan A cos A sin A, LHS करते हैं पहले। LHS में हम लोग को tan A का वैल्यू चाहिए तो पहले tan A निकाल लेते हैं। tan A होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो क्वेश्चन में आंसर में देखिए हम लोग तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और बेस क्या है 4, तो 3/4 ये हम लोग का हो जाएगा tan A का वैल्यू। अब क्वेश्चन में प्रूफ करना है तो पहले हम लोग LHS प्रूफ करेंगे। 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 प्लस tan स्क्वायर A, LHS सॉल्व करते हैं पहले। तो 1 माइनस tan स्क्वायर A मतलब 3/4 का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखते हैं ताकि वो ज़्यादा इजी हो सॉल्व करने में। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 माइनस 9 आएगा, दैट इज़ 7/16 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 9 25/16, 7/16 इंटू 16/25, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर विल बिकम 7/25। ये हम लोग का LHS है। अब हम लोग RHS भी सॉल्व करेंगे। RHS में वैल्यू दिया हुआ था cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, तो हम लोग को cos A और sin A का वैल्यू पता नहीं है। पहले cos A निकाल लेंगे। cos A इज बेस बाई हाइपोटेन्यूस, तो हम लोग का बेस हो जाएगा 4 और हाइपोटेन्यूस निकला था 5। तो वैसे ही sin A विल बिकम परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर क्या है 3 और हाइपोटेन्यूस क्या है 5। हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। cos A है 4/5, तो इट विल बिकम 4/5 का स्क्वायर होल स्क्वायर और sin A मीन्स 3/5 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 16/25 माइनस 9/25 एंड द आंसर विल बिकम 7/25। अब देखिए LHS क्या था 7/25 और RHS भी था 7/25, तो देयरफॉर वी कैन राइट LHS इक्वल टू RHS एंड हेंस दिस इज प्रूव्ड।
Now moving to the next question. क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. 9 इज़ ऑल्सो ईजी, कुछ नहीं करना, पिछले क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व हो जाएगा. सो विल डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 10. दैट्स लिटिल डिफरेंट क्वेश्चन, इसलिए उस क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस करेंगे. ट्राइंगल पी क्यू आर है, राइट एंगल एट क्यू. तो पी क्यू आर एक ट्राइंगल है जिसका राइट एंगल किस पे है, क्यू पे है. पी आर एंड क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज़ 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज़ 5 सेंटीमीटर. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. हम लोग को साइन पी, कॉस पी और टैन पी का वैल्यू निकालना है. This is our triangle P, Q and R right angled at Q. PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और हम लोग को वैल्यू क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर. तो हम लोग क्या करते हैं, PR को हम लोग x ले लेते हैं. लेट द लेंथ ऑफ PR बी x सेंटीमीटर. तो x प्लस क्यू आर 25 हो जाएगा. तो इससे ऑटोमेटिकली क्यू आर कितना हो जाएगा, 25 माइनस x सेंटीमीटर. तो क्यू आर हम लोग का हो गया 25 माइनस x सेंटीमीटर. अब हम लोग को हाइपोटेन्यूस पता चल गया x के टर्म में, बेस पता चल गया x के टर्म पे और परपेंडिकुलर पता चल गया 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. तो वो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे यहाँ पे. हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. पी आर का वैल्यू हम लोगों ने एक्स लेट कर लिया तो उसको एक्स स्क्वायर कर दिए. पी क्यू मीन्स 5 का स्क्वायर, पी क्यू का 5 दिया हुआ है. देन क्यू आर है हम लोग का 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो विल सॉल्व दिस. एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में है, फॉर्मूला पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ए स्क्वायर मीन्स 25 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी. हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो इट विल बिकम एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 50x आएगा. 2 इंटू 25 इंटू एक्स 50x. नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम साइन है तो दोनों साइड तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. अब ये माइनस 50x को हम लोग दूसरे साइड ले जाते हैं तो ये 50x हो जाएगा इक्वल टू 25 प्लस 25 विल बिकम 650. तो x का वैल्यू आ जाएगा 650 बाई 50. इट विल गो बाई 13 सेंटीमीटर. सो x का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर मीन्स पी आर का वैल्यू आ गया 13. अब क्यू आर निकालेगा 25 माइनस 13 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. तो हम लोग ये फिगर को फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं, डायग्राम हम लोग का अच्छे से. सो दिस इज़ पी क्यू आर. पी क्यू का वैल्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ था. पी क्यू पी आर हम लोग का एक्स था तो एक्स का वैल्यू आ गया 13 सेंटीमीटर एंड क्यू आर का वैल्यू था 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस 13 दैट इज़ 12 सेंटीमीटर. तो ये पी आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर. हम लोग को अब निकालना है साइन पी, कॉस पी और टैन पी. पी यहाँ पे है तो इसके ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा मीन्स क्यू आर विल बिकम परपेंडिकुलर एंड पी क्यू विल बिकम बेस. निकालते हैं. साइन पी इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूस तो पी आर ही रहेगा. तो आंसर विल बिकम 12/13. सिमिलरली कॉस पी विल बिकम बेस बाय हाइपोटेन्यूस. तो बेस है हम लोग का पी क्यू और हाइपोटेन्यूस तो पी आर ही रहेगा. सो द आंसर विल बिकम 5/13. लास्ट में हम लोग को निकालना था tan p. So it will become perpendicular by base, perpendicular QR base PQ. The answer will become 12/5. So we got all the 3 answers. Do like and share the video if you liked it. Thank you for watching.